Thank you NIRC and the office bearers to inviting me. Yeah. So I'll be talking about open interest and data. See, to give you a disclaimer, I'm a full-time trader. मेरी रोजी रोटी trading से चलती है, and whatever I'll be speaking is relevant to trading. Okay, it is not relevant to investments. So जो भी trading कर रहे हैं, उनके लिए बहुत useful रहेगा. और secondly, अगर आप trading नहीं भी करते हो, even if you are just a cash trader जो आप delivery में लेके रखते हो stocks को, आपके लिए भी ये बहुत insightful है, क्योंकि इससे आपको exit plan करने में मदद मिलेगा, and you'll get to understand the more dynamics of the market. Okay, so data speaks it all. See, there are three types of analysis. First is your fundamental analysis, जो कि हम सब जानते हैं. We all see as our expert. You all see as our expert of that. Okay. The second is technical analysis, which is reading charts, reading data patterns. So this is relatively new. It's hardly 35-year-old field. उससे पहले तक इंडिया में तो क्या वर्ल्ड में भी इतनी it was not so what I'll say it was not recognized, and India में तो just started off late, like last 10-15 years technical analyst and technical analysis start हुआ है. उससे पहले तक तो किसी brokers के उस पे charts भी नहीं रहते थे. The third is the quant analysis or the quantitative analysis, which is hardly 10-year-old in India, and US maybe it's hardly 30-year-old. Okay, and this is what we do, the quant. So we do all the three, but quant is our forte. So quant is basically when you are using data and the programming to derive some models and derive some logic or some model prediction way mein. So what is the entire input in quant model is one of the most important concept is open interest. Yeah. So how many of you are traders here? Okay. Hardly 4. No, I'm talking about F&O traders. F&O traders. F&O में तो आप invest नहीं कर सकते हो. Okay. या तो मैं गलत हॉल में हूँ या CAs are liars. I'll tell you why. I'm also CA. I'll tell you why. Because I do a lot of session in IMA also, Indian Medical Association. And whenever I ask this question, ना वहाँ 70% plus doctors हाथ उठाते that they trade. So I cannot believe कि hardly 4 जन है इस हॉल में, वो भी दिल्ली जैसे सिटी में, who say कि they are F&O traders. नहीं, आपने एक लॉट भी खरीदा होगा कभी, तो भी I'll consider you as a F&O trader. Okay. Okay. फिर भी 6 ही हाथ उठे. Good. Okay. So open interest is very important concept. Okay, as an F&O trader, and it tells you a lot on how the institutions or the big players are playing in the market. So as a technical analyst, I always tell my team also, कि if you want to be a good technical analyst, don't ask why. A technical analyst का जो question होता है ना, you should be asking what. Why, क्यों market ऊपर जा रहा है? Why market is trading at this P? Why Adani is falling? That should not be the question. Why ITC is not moving? A good technical analyst का question होना चाहिए what. अगर market नीचे जा रहा है तो what do you have to do? अगर market ऊपर जा रहा है तो what do you have to do? Okay, and open interest tells you how the big players are moving so that you can derive your what. Okay, it doesn't tell you why they are doing that, but gives you a question कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है. So what is open interest? Open interest is nothing but your total number of outstanding contracts. As we all know, F&O is a zero-sum game. एक buyer है तो उसके against में एक seller mandatory रहना ही चाहिए. Okay. So it also defines as the total number of future contracts or option contracts that have not been exercised, squared off, or fulfilled or delivered. So what is the benefits of open interest? First, it measures the flow of money. कितने नए पैसे आ रहे हैं. The more the
stock which has a higher open interest, it speaks that more people are participating in that. And open interest badhna and ghatna also signifies a lot of data points. Therefore, to determine the total open interest for any given market, we need to only see the total number of only one side. That is either the buyer side का summation पूरा ले लो या seller side का summation. That will give you the total interest, how much is open interest. So open interest and volume are almost identical, but there is a slight difference between open interest and volume. Volume is per day ka, but open interest is for the series in total. Okay. So open interest and volume are the two important concepts. The future market traders obviously looks both to predict. So let's discuss with the help of example. थोड़ा सा open interest के basics पे चले जाते हैं, and then we'll go into how to identify, because some of you may not even know the basic of open interest. So let's say, for an example, on day 1, B sells 8 future contract and A buys all 8. तो अभी open interest कितना है? 8. Okay. So after day 1, both volume and open interest is 8. Next day, A sells 5 contract and C buys 5 contract. So how much is the volume for that day? And how much is the open interest for that day? 8. Okay, so open interest have not changed. Why? पहले दिन क्या हुआ था? B has sold to A. How much contract? 8. Now what has happened? This was day 1. Day 2, A has sold out of his 5 contracts to C. How much? 5 contracts. तो इसके पास -5 हो गए. How much is the total contracts? 8, 3 and 5. Let's say these are sellers. Let's say sell this way. Okay. So the total contracts remains still 8. At the end of the second day, volume changes to 5. However, the open interest remains the 8. So volume, as we all know, volume changes it's of just the daily, but the open interest is for the entire series, or it may remain unchanged for days. Okay, अगर नए player नहीं आ रहे हो, उन्हीं players में hand change हो रहा है, so open interest will remain constant, but the volume will be daily happening in that stock. Okay. So क्यों सीखना है open interest? What is the benefit or what does it tells? So first it indicates the total number of unsettled future contracts with the individual buyers and sellers. Okay. It essentially essentially the number of open interest also signifies the liquidity. It helps to predict the market trend. Okay. Together, OI and volume helps the trader to make better trading decisions. Okay. So now let's get into the 4 scenarios. OI increasing, price increasing. What is it? Long build up. We all know this. Pretty simple. कोई भी आप chart उठा लो, कोई भी scanner उठा लो, any sort of software you pull up, whether it's iChart, MyFNO, QuantSap, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, आपको डायरेक्टली वहाँ पे डेटा मिल जाता है कि लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है, जहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है. मतलब some institution is buying along with the prices going up. So we call it typically a long built up. Okay, more trades on the long side. Price is decreasing. Okay, before I jump here, there is a indicator named RSI, relative strength indicator. ये एक oscillator होता है. Oscillator means something which oscillates between 0, एक range में जैसे pendulum चलता है ना कि एक range में, so उसे हम oscillator बोलते हैं. तो RSI moves between the range of 0 and 100. कभी 0 टच नहीं होता है and कभी 100 तक नहीं जाता है. So it basically between 0.01 and 99.99 तक. जो typical conceptually theoretical concept में हम ये बोलते हैं कि 70 से ऊपर और 30 से नीचे. 70 से ऊपर RSI है के ऊपर अगर चला गया है रीडिंग, so it means over bought, and 30 से नीचे it means
oversold. Okay, so we all are clear on this. We all are on the same page. Okay, ये theoretical ऐसा बोला जाता है. Again, that is a wrong thing. But theoretically people say कि अगर RSI 70 से ऊपर है तो ये overbought है, और RSI 30 से नीचे चला गया है तो ये oversold हो गया है stock. Okay, that is a wrong definition. Again, I'm saying, but theoretically you will find in every books, even a lot of softwares also quoting that. Okay, yeah. Wrong कैसे है? It is a very nice question. In fact, इस पे मैं पूरा session ले सकता हूँ, but I'll try to summarize it in very short. By way of example, let's say you have to run, and if you have to run at the speed of 2 or 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे तक आप चल सकते हो 3 किलोमीटर पर आवर आराम से. कैन यू वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली फॉर 1 आवर? 1 घंटे में 6 किलोमीटर. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. जो डेली प्रैक्टिस नहीं करता है तो मुश्किल होगी. ठीक है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा मुश्किल होगी. कैन यू रन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली फॉर 1 आवर? समबडी हु इज अ मैराथन रनर जो ट्रेडमिल पे प्रैक्टिस करता है वही दौड़ सकता है. इजंट इट? सो कमिंग बैक, जब कोई स्टॉक 8 के स्पीड से चल रहा है, सो इट इज़ नॉट यू एंड मी हु इज बाइंग इट, इट इज सम इंस्टीट्यूशन हु इज बाइंग इट. जो स्टॉक में बड़ा मूव आता है वो 70 के बाद जब वो जाता है तभी आता है. इनफैक्ट RSI बीइंग एन ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर मतलब दिस इज लाइक अ पेंडुलम विच स्विंग्स बिटवीन हियर एंड हियर. ओके, but in a bullish market, this doesn't remains like this. It tilt this way in a bullish market. So bullish market में ऐसे मूव करेगा, नीचे 30, ऊपर 100, not exactly 100, but ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. So मतलब 70 के ऊपर जा रहा है, so that is a time where the institutions are buying. 9 के ऊपर या 10 के ऊपर आप दौड़ सकते हो. You need उसेन बोल्ट जैसा स्टैमिना, isn't it? तो जब स्टॉक 9 की स्पीड में दौड़ रहा है तो इट इज सम इंस्टीट्यूशन इज बाइंग. वुड यू बेट अगेंस्ट उसेन बोल्ट? आप में से कोई भी उसेन बोल्ट के अगेंस्ट में बैटिंग करेगा? okay, बट व्हेन वी हियर ओवरबॉट तो हमको क्या कॉन्सेप्ट क्या लगता है? व्हाट इज ओवरबॉट एज अ डिक्शनरी मीनिंग और एज अ इंग्लिश मीनिंग सिग्निफाइज? ज्यादा बाय हो गया है. ठीक है, पीपल हैव बिकम ओवर खरीद रहे, बट ओवर नहीं खरीद रहे. सम इंस्टीट्यूशन इज बाइंग. ओके, सो इट इज नॉट ओवरबॉट, इट इज एक्चुअल बाइंग हैपनिंग इन दैट स्टॉक. सो इट इज इन अ बुलिश ट्रेंड. सो कोई भी अच्छा, जब भी बुल मार्केट में RSI ऑसिलेट करता है 30 से 100 के बीच में, एंड ऑब्वियसली बेयर मार्केट में कैसे ऑसिलेट करेगा? जस्ट क्विकली delete this entire slide. So how it will oscillate between a bear market? It will go, sorry. How it will oscillate between in a bear market? Somewhere between 0 to 70. अपर में 70 तक जाएगा, वहीं से वो रिवर्स कर जाएगा. बेयर मार्केट में कभी वो 70 के ऊपर नहीं जा पाएगा. ठीक है, एंड नीचे में बार बार इट विल कम एंड हिट 10, 15, 20 के रेंज में. ऑन एनी टाइम फ्रेम, वेदर वट एवर टाइम फ्रेम यू आर सीइंग, इफ इट्स इन अ बुलिश ट्रेंड इन दैट टाइम फ्रेम, इट विल ऑसिलेट बिटवीन दैट जोन. सो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, आई थिंक इट्स अ वर्ड इज रॉन्ग, बिकॉज व्हेन वी हियर ओवरसोल्ड, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा बेच दिया. लेकिन आप DHFL का चार्ट देखोगे, जब वो गिर रहा था या येस बैंक जब गिर रहा था, कोई भी स्टॉक जब गिर रहा था, सो कंटिन्यूसली वो 30 के नीचे ही था. सो देयर इज नथिंग लाइक ओवरसोल्ड. ओके, या, सो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट. इट्स अ फ्लैटिश मार्केट देन. या, no, RSI is not according to the price. RSI is a indicator which signifies the momentum. It is basically an RPM, जो अपने कार का RPM होता है. जैसे ही आप एक्सेलरेट देते हो तो कार का RPM बढ़ जाता है. ठीक है,
बट इफ यू आर ऑन अ हाईवे, आप देखोगे आपका आरपीएम 3 पे ही है, यू आर स्टिल एट 70 के स्पीड पे, बट आरपीएम 3 पे है। जब तक आप फ्रेश एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, सो स्टॉक इज स्टेडीली गोइंग अप, आरएसआई विल नॉट गोना मूव। That also signifies strength. So RSI is basically the RPM of your car. Okay, all the car enthusiasts will understand this concept very well. कि जैसे आप RPM बढ़ाते हो, रेस देते हो, RPM शूट अप होता है एंड द कार का एक्सेलरेशन पिकअप होता है। जैसे आपको टर्न लेना है, what happens? Your speed doesn't kill first. You have to drop down your RPM. 4 के RPM पे आप कभी भी यू टर्न नहीं ले पाओगे। You have to reduce your RPM to 2, then only you can take even 60 की स्पीड पे आप टर्न ले सकते हो। If you are a pro driver, but 4 के RPM पे आप कभी टर्न नहीं ले पाओगे। Okay, let's not discuss that. मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए, जैसे ना नेटफ्लिक्स पे आजकल एक कॉन्सेप्ट हो गया है बिंज वॉचिंग का, कि आफ्टर एवरी एंड ऑफ द एपिसोड दे गिव यू हुक, सो दैट आप पूरी रात काली करो और वो पूरा सीरीज खत्म करो। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ हुक, सो दैट एनआईआरसी जब भी कोई दूसरा प्रोग्राम करे मेरे को बुलाए। सो दिस इज द हुक टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो कमिंग बैक टू द ओआई पार्ट, ओके, प्लीज स्टे अटेंटिव। मैं आज सेशन के एंड में आई विल बी गिविंग अ स्ट्रैटेजी विच इज अ नो लॉस स्ट्रैटेजी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ नो लॉस स्ट्रैटेजी? ओके, इसमें एटलीस्ट एवरीबडी इज फेयर एंड so that I'll be discussing a no loss strategy with you guys. Absolutely no loss. In fact, RSI being an oscillator, ठीक है, oscillator मतलब this is like a pendulum which swings between here and here. Okay, but in a bullish market, this doesn't remain like this. It tilt this way in a bullish market. So बुलिश मार्केट में ऐसे मूव करेगा, नीचे 30 ऊपर 100, नॉट एग्जैक्टली 100 बट ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। सो मतलब 70 के ऊपर जा रहा है, दैट इज अ टाइम वेयर द इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग। 9 के ऊपर या 10 के ऊपर आप दौड़ सकते हो, यू नीड उसेन बोल्ट जैसा स्टैमिना, इजंट इट? तो जब स्टॉक 9 की स्पीड में दौड़ रहा है तो इट इज सम इंस्टीट्यूशन इज बाइंग। वुड यू बेट अगेंस्ट उसेन बोल्ट? आप में से कोई भी उसेन बोल्ट के अगेंस्ट में बैटिंग करेगा? okay, बट व्हेन वी हियर ओवरबॉट, तो हमको क्या कॉन्सेप्ट क्या लगता है? व्हाट इज ओवरबॉट एज अ डिक्शनरी मीनिंग और एज अ इंग्लिश मीनिंग सिग्निफाइज? ज्यादा बाय हो गया है, ठीक है, पीपल हैव बिकम ओवर खरीद रहे, बट ओवर नहीं खरीद रहे, सम इंस्टीट्यूशन इज बाइंग। okay, so it is not overbought, it is actual buying happening in that stock, so it is in a bullish trend. so कोई भी अच्छा, जब भी बुल मार्केट में RSI ऑसिलेट करता है 30 से 100 के बीच में, एंड ऑब्वियसली बेयर मार्केट में कैसे ऑसिलेट करेगा? Let me just quickly delete this entire slide. So how it will oscillate between a bear market? It will go, sorry, how it will oscillate between in a bear market? Somewhere between 0 to 70. अपर में 70 तक जाएगा, वहीं से वो रिवर्स कर जाएगा। बेयर मार्केट में कभी वो 70 के ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, एंड नीचे में बार बार इट विल कम एंड हिट 10, 15, 20 के रेंज में। ऑन एनी टाइम फ्रेम, whether whatever time frame you are seeing, if it's in a bullish trend in that time frame, it will oscillate between that zone. So overbought and oversold, I think it's a word is wrong, because when we hear oversold, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा बेच दिया। लेकिन आप DHFL का चार्ट देखोगे, जब वो गिर रहा था या यस बैंक जब गिर रहा था, कोई भी स्टॉक जब गिर रहा था, सो कंटिन्यूसली वो 30 के नीचे ही था। सो देयर इज नथिंग लाइक ओवरसोल्ड। ओके, या, सो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट। इट्स अ फ्लैटिश मार्केट देन। Yeah. No, RSI is not according to the price. RSI is an indicator which signifies the momentum. It is basically an RPM, जो अपने कार का RPM होता है।
जैसे ही आप एक्सेलरेट देते हो तो कार का आरपीएम बढ़ जाता है, ठीक है। बट इफ यू आर ऑन हाईवे, आप देखोगे आपका आरपीएम 3 पे ही है, यू आर स्टिल एट 70 के स्पीड पे, बट आरपीएम 3 पे है। जब तक आप फ्रेश एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, सो स्टॉक इज स्टेडीली गोइंग अप, आरएसआई विल नॉट गोना मूव. That also signifies strength. So RSI is basically the RPM of your car. Okay, all the car enthusiasts will understand this concept very well. कि जैसे आप RPM बढ़ाते हो, रेस देते हो, RPM शूट अप होता है एंड द कार का एक्सेलरेशन पिकअप होता है. जैसे आपको टर्न लेना है, what happens? Your speed doesn't kill first. You have to drop down your RPM. 4 के RPM पे आप कभी भी यू टर्न नहीं ले पाओगे. You have to reduce your RPM to 2, then only you can take even 60 की स्पीड पे आप टर्न ले सकते हो. If you are a pro driver, but 4 के RPM पे आप कभी टर्न नहीं ले पाओगे. Okay, let's not discuss that. मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए, जैसे ना नेटफ्लिक्स पे आजकल एक कॉन्सेप्ट हो गया है बिंज वॉचिंग का, कि आफ्टर एवरी एंड ऑफ द एपिसोड दे गिव यू हुक, सो दैट आप पूरी रात काली करो और वो पूरा सीरीज खत्म करो. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ हुक, सो दैट एनआईआरसी जब भी कोई दूसरा प्रोग्राम करे मेरे को बुलाए. सो दिस इज द हुक टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड. सो कमिंग बैक टू द ओआई पार्ट. ओके, प्लीज स्टे अटेंटिव. मैं आज सेशन के एंड में आई विल बी गिविंग अ स्ट्रैटेजी विच इज अ नो लॉस स्ट्रैटेजी. हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ नो लॉस स्ट्रैटेजी? ओके, इसमें एटलीस्ट एवरीबडी इज फेयर एंड so that I'll be discussing a no loss strategy with you guys. Absolutely no loss. Please, I've even spoken that into many of the platforms. See, as a trader, as an investor नहीं, as a trader, हमारा KPI, जो हम corporate में KPI use करते हैं ना, की performance indicator word काफ़ी. As a trader, our KPI is only and only risk management और capital management. प्राइस ऊपर जाना से रिलायंस का प्राइस ऊपर जाना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मुकेश भाई के हाथ में है. और किसी एक स्टॉक का प्राइस नीचे जाना वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो हिंडनबर्ग के हाथ में है. ठीक है, तो ना आप रिटर्न आपके हाथ में है, ना लॉस आपके हाथ में है. आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है आपके कंट्रोल में, दैट इज प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल. जो पैसा आना है वो तो आपके कर्मों के हिसाब से आएगा मार्केट से. लॉस आपको सिर्फ बचाना है, पैसा तो मार्केट देने के लिए बैठा है. सो जिस दिन आप लॉस बचाना सीख लो कि आई एम ओके विथ दिस मच लॉस, आई गोना कट इट. आई स्पोक yesterday also, some of you were there. I think the word stop loss itself is wrong. It should be used as a capital protection. Okay, those who were not there, they missed it yesterday. So coming back, मेरा सेशन काफ़ी बड़ा है, so I have to wrap up this important point. Okay, yeah, OI decreasing, price decreasing. What is this? नहीं, this is not short built up, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, OI भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. So longs are covering their position, also called long unwinding. ठीक है. अब इसीलिए ये डिस्कस करने से पहले मैंने RSI का इसीलिए आपसे डिस्कस किया. ये सिनेरियो जो है ये कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा? When RSI is above 70 और when RSI is below 30. इसे हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग. ठीक है. और देखो, लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप इज वेरी सिंपल, उससे पैसा नहीं बनता. लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप से पैसा नहीं बनता. इट्स सो सिंपल कि उससे पैसा नहीं बन सकता. पैसा बनता है व्हेन यू अंडरस्टैंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग. सो ये सिनेरियो कहाँ पे मिलेगा? या यहाँ पे मिलेगा, मतलब एनीवेयर बिटवीन 70 to 30. Where will you find this scenario? Option 1, option 2, option 3. So can I have a show of hand? Option 1. Okay, 4 people. Mid option, option 2. Okay, 5, 6 people. 4, 5 people again. Option 3. Okay. So the house is divided, I'll say. Okay. So it happens
ऑब्वियसली इसमें भी मिलेगा, बट इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. इट कैन हैपन बोथ द प्लेसेस. इट कैन हैपन बोथ द प्लेसेस, एंड दोनों जगह इसकी मीनिंग्स काफ़ी डिफरेंट है. दोनों जगह ये हो रहा है तो इट सिग्निफाइज वेरी डिफरेंट थिंग. ओके, दिस पैटर्न और दिस सिनेरियो you can find both the places when RSI is above 70 and when RSI is below 30. एंड जब ये RSI below 30 हो रहा है तो आपको उसको दूसरी तरीके से रीड करना है, एनालाइज करना है. एंड जब ये RSI 70 के ऊपर हो रहा है तो आपको इसको दूसरी तरीके से रीड एंड एनालाइज करना है. दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट थोड़ी देरी में. ओके, सो ये समझ में आ गया सबको लॉन्ग अनवाइंडिंग तक? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? ओके. OI increasing, price decreasing. What is this? Short built up. ये सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं. और क्या? OI decreasing, price increasing. This is your typically short covering. ठीक है. Coming back to the same question, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग. ये कहाँ मिलेगा? RSI 70 के ऊपर, 30 के नीचे. 70 to 30 is not in the option. Typically, it will happen here in this zone below 30. Okay, but it can happen here also. And when it happens here, it signifies something different. Okay. So this is long built up, short built up, long unwinding, short unwinding. कमिंग बैक, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आप लोगों को. इन दोनों में से एक डार्क ग्रीन है, एक ऑरेंज कलर है. इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दो वर्टिकल लाइंस है या दो वर्टिकल कॉलम्स है. इन दोनों में से कौन सा कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब कौन सा रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, कौन सा रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रो 1 और रो 2? रो 2. ठीक है. Why? Because see, long built up and short built up is something which tells you this already has happened. The event has already happened. कोई already घुस चुका है. ठीक है. उसके बाद आप इंटर करोगे, the risk reward may not be that favorable. Obviously, it's a confirmation that trend is happening, but we need to enter when this is happening, not after this. Okay. वो कैसे पता चलेगा? जब आप इसको समझोगे. कभी भी पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप होगा. पहले शॉर्ट्स निकलेंगे, फिर आपको लॉन्ग बिल्टअप देखने मिलेगा. सो दिस विल हैपन फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल लेवल. आफ्टर दैट दिस इवेंट विल गोना हैपन. सिमिलरली, पहले लॉन्ग अनवाइंड होंगे, उसके बाद शॉर्ट बिल्टअप होगा. ओके, सो क्रोनोलॉजिकली दिस इवेंट विल गोना हैपन फर्स्ट, आफ्टर दैट दिस इवेंट विल गोना हैपन. तो अगर आपको ये इवेंट आप ट्रैक करना सीख गए, सो दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन. आपको जैसे ये दिखा, ऑल यू हैव टू डू इज पुल द ट्रिगर. ओके, बट ये आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑब्वियसली दिस इज फार इंपॉर्टेंट, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग. ओके, एज आई सेड, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप इज वेरी सिंपल. प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अप जा रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, ट्रेंड इज अप. प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट अप जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डाउन. ठीक है. प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है. एज आई सेड, इट कैन हैपन दो जगह, RSI above 70 एंड RSI below 30. ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है. What is it known? Short covering. ठीक है. Short covering when you spot it when the RSI is below 30, but when RSI is above 70, मतलब क्या हुआ? लॉन्ग बिल्टअप नहीं हो रहा है. अब ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है. अब ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? आई नो इट्स अ हार्ड सेशन फॉर मी. इमीडिएटली आफ्टर द लंच, आफ्टर जलेबी एंड रबड़ी, बट प्लीज आई नीड योर फुल अटेंशन. इस स्लाइड पे और एक और स्लाइड है उस पर. सो आई नीड योर 5
मिनट 10 मिनट्स फुल अटेंशन, उसके बाद आप अपना पावर नैप कंटिन्यू रख सकते हो। तो इसमें 100% अटेंशन चाहिए मेरे को आपका। अप ट्रेंड इज वीकनिंग, मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो स्मार्ट मनी है या जो इंस्टीट्यूशन मनी है, दे आर एग्जिटिंग एंड रिटेलर्स और द स्मॉल प्लेयर्स आर एंटरिंग। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ रिटेलर्स आर एंटरिंग? बिकॉज रिटेलर्स के खरीदने से लॉन्ग बिल्टअप नहीं बनता या ओपन इंटरेस्ट नहीं बनता। सो स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग without leaving their footprints. So as an algo trader, I sell these platforms where if somebody has to say put 50,000 of Reliance का order, अगर वो direct market में डालेगा तो price will going to impact. So we do the slicing based on VWAP, based on bid ask differences, based on order flow, based on lot of things. And we even कितना भी बड़ा order हो, we try to tell him कि we'll get you the best price. So bigger institutions buy our software to use that so that they can buy their quantity without impacting the market. Okay. So ये सिनेरियो कब मिलेगा आपको? जब बड़ा प्लेयर निकल रहा है, they are slowly exiting their position without impacting the price. मतलब क्या हो गया? देखो ये 630 के नीचे हो रहा है, मतलब क्या है? इट्स अ शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स निकल रहे, बट ये 70 के ऊपर हो रहा है, मतलब क्या हो गया? अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था। आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल ऑल्सो। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, बट स्मार्ट मनी स्टार्टेड एग्जिटिंग। वो अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे क्लोज करने लगे स्लोली। प्राइस फिर भी थोड़ा बहुत अप जा रहा है। इट मे बी अ बुल ट्रेंड, इट मे बी अ स्टॉक कंटिन्यूइंग अप ट्रेंड, प्राइस मे स्टिल कंटिन्यू टू गो अप। सो दैट इज योर फर्स्ट रेड फ्लैग। ठीक है, इवन इफ यू आर होल्डिंग समथिंग, से यू ट्रेड ओनली इन कैश स्टॉक्स, आपके लिए फर्स्ट रेड फ्लैग है। अगर आपको ये दिखा, व्हाट यू हैव टू डू? एटलीस्ट बुक सम ऑफ योर प्रॉफिट। ओके, बुक सम ऑफ योर प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस अप जा रहा है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, तो आपको एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी। प्राइस गोइंग डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो गोइंग डाउन। दिस इज नोन एज टिपिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, बट इन अ डाउन ट्रेंड इज वीकनिंग, इट इज गुड टाइम टू एग्जिट योर शॉर्ट्स। दिस यूल फाइंड इवन व्हेन अ स्टॉक इज बिलो 30, बिलो RSI 30. Okay, I have a concept of zone. Some of you might have seen my YouTube video where I've explained Bollinger Band ka zone. Okay, if you have not, please go and watch it. So this can happen in both zone 1 and zone 4. Okay. So these two are the far more important pointers for me. Okay, these two scenarios are the far more important scenarios for me: long unwinding and short coverings. किसमें? हाँ, सो प्राइस इज स्टिल गोइंग डाउन, बट ओपन इंटरेस्ट बंद हो रहा है, मतलब फ्रेश शॉर्ट्स नहीं हो रहे। बाइंग नहीं करना है हमें वहां पर, बट एटलीस्ट हमारा शॉर्ट है तो उसको एग्जिट करना है, एंड दैट टाइम द स्टॉक शुड कम इनटू योर रडार कि इसमें शॉर्ट्स बंद हो रहे हैं। अब इसमें आपको वेट करना है कि फर्स्ट टिक मिल जाए या फर्स्ट आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप हो रहे, देन यू हैव टू एंटर। एग्जैक्टली, बाइंग के लिए अच्छा मौका आने वाला, तो ये आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक बन जाना चाहिए। सो आपके अगर शॉर्ट्स है तो उसमें आपको बेस्ट टाइम है शॉर्ट्स में पैसा बुक करने के लिए। ये दोनों सिनेरियोज में हो सकता है। क्या 70 के ऊपर भी हो सकता है और 30 के नीचे भी हो सकता है। 70 के ऊपर हुआ तो हम इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल देंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, मतलब लॉन्ग्स निकल रहे। बट लॉन्ग्स निकल रहे तो वो इम्पैक्ट कर रहे प्राइस में। लॉन्ग्स निकल रहे तो वो बेच रहे, तो उनके निकलने से प्राइस भी नीचे जा रहा है। बट अगर ये 30 के नीचे हो रहा है, मतलब वो विदाउट इम्पैक्टिंग द प्राइस निकल रहे। यूजुअली आप डे पे देखो, ये चार्ट्स डे पे आप ये चार्ट और एनालाइज करो।
ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज 3 मिनट बाद देती है, बाकी सारा डेटा एक्सचेंज इमीडिएटली। अगर मैं HFT लाइन में काम करता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, सो वहाँ में टिक बाय टिक, मतलब हर टिक पे डेटा मिलता है, हर माइक्रो सेकेंड में वी गेट अ डेटा पॉइंट, डेटा पैकेट्स फ्रॉम द एक्सचेंज. But even for us, even on the HFT platform, the open interest data is published by exchange only by after 3 minutes. Okay, तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी वेंडर यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो 4 मिनट तक डिले हो जाता है. 3 मिनट वो उसके सर्वर पे जाएगा, वहाँ से आपके इस पे आएगा, इंटरनेट की लेटेंसी रहेगी, तो 4 मिनट का आप मोटा मोटी लैग समझ के चलो. सो 4 मिनट इज़ अ वेरी बिग विंडो, स्पेसिफिकली दोज हु आर ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस. इंडेक्स ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हमने देखा अभी अप्रैल में विद इन 3 सेकेंड्स निफ्टी ड्रॉप्ड हाउ मच, ऑलमोस्ट 1%. आपका $3 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी का इंडेक्स है, सबसे बड़ा इंडेक्स, दैट ड्रॉप्ड 3 सेकेंड के अंदर 1% पे. ओके, सो उससे आप ये समझ सकते हो कि 4 मिनट इज लाइक ऑलमोस्ट एक मिलेनियल. HFT वालों के लिए तो एक मिलेनियम जितना बड़ा हो जाता 4 मिनट. एल्गोरिथम से, हाँ, यस. सो कमिंग बैक, चोला फाइनेंस. ओके, चोला फाइनेंस, एज यू कैन सी हियर द प्राइस स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉप्ड, बट समवेयर अराउंड हियर, ओके, जब वो इस जोन में था तभी अगर आप देखोगे, so the short covering started happening. Okay, this is from the iChart. iChart करके एक सॉफ्टवेयर है, उससे आई एम नोवेयर अफिलिएटेड टू iChart. आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन बोनस, कुकर, फ्रिजर, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा. ओके, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, इट विल गिव यू द सेम डेटा. ओके, दे आर सेवरल सॉफ्टवेयर्स, iChart है, ऑब्स्ट्रा है, MyFNO है, एंड दीज सॉफ्टवेयर्स आर very I'll say reasonably charged. If you are talking about trading and future, आपका 1% move is usually typical. Any future contract is 7 to 8 lakhs का notional value. तो अगर उसमें 1% का भी move आता है तो आपका M2M 7-8 हज़ार से हिलता है, okay, एक लॉट पे. And these softwares comes for hardly 500-700,000 rupees per month. So if you'll see from the analysis point of view, they are charging peanuts. Okay. ये तो iCharts के है. iChart is a good software. Opstra is a good software. Okay, इसमें से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं टीवी शेयर करता हूँ, तो मैं सबके बारे में अच्छा ही बोलूँगा, बट दे आर रियली गुड. उसके बाद Opstra, iCharts, QuantSap, और कौन से है, MyFNO, ये 4 काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है. बेसिक्स में अगर आपको सस्ते रेंज में चाहिए, इफ़ यू आर अ प्रो ट्रेडर, इफ़ यू आर अ गुड, इफ़ यू आर लाइक सीरियस ट्रेडर, देन आई थिंक समथिंग लाइक Falcon और Spider is fabulous. But they are little expensive. They come 70,000-80,000 rupees per year basis, but still worth it. Still 6-7 हज़ार रुपया महीने का ले रहे, बहुत सस्ता है. स्पाइडर फाल्कन में बहुत सारा डेटा सेट है. ठीक है, अगेन एक दिन आप उनका सेशन करवा लो, मैं वहाँ इनकी मार्केटिंग नहीं करूँगा, बट एक सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे हम एक क्वेरी रन करते हैं फाल्कन में, स्पाइडर में, तो आई यूज़ स्पाइडर, कि भाई मेरे को 50 लाख से वैल्यू के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं F&O में, 50 लाख एंड अबव, एंड जो सामने से खरीद रहा है, सी दैट 2 वे यू कैन बाय. आप बिड लगाकर खरीद सकते हो, आप आस्क सेलर से ले सकते हो. तो जो भी सेलर से ले रहा है टिक बढ़ाकर, आई नीड दैट डेटा 50 लाख एंड अबव वाले. सो ब्लॉक जहाँ भी हो रहा है छोटा, मतलब, तो दैट गिव्स मी कि हाउ अग्रेसिव द बायर इज, कि वो बिड लगा के नहीं ले रहा है, वो सामने से खरीद रहा है, उठा रहा है. 50 लाख से ऊपर का, 1 करोड़ से ऊपर का वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो वो आप डाल सकते हो. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस के तो बहुत सारे आप कर सकते हो. कहाँ कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ PCR चेंज हो रहा है, किस स्ट्राइक में कहाँ मूव हो रहा है, तो स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इट्स वेरी यूजफुल. ओके, कमिंग बैक, शॉर्ट कवरिंग.
Okay, I'll show you some recent examples also. ये थोड़ा सा पुराना है, but Deepak Nitrite. Okay, exactly price moved from here, and sorry, this was the zone. I'll just highlight it also. This was the zone. Okay, I'll be sharing these PPTs so you can just check with the dates also. यहाँ पे शायद उतने dates इसमें नहीं दिखेंगे visible आपको. Okay, ये exit, ये fall आने से पहले, okay, there were a lot of short covering was happening in the stock. Before this big fall came, the short covering started happening. Okay, short covering कहाँ हम देख रहे हैं? यहाँ पर, मतलब I call this zone 1, और जब टिपिकली RSI जो है 70 से ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, कोई भी स्टॉक है आपके पास जो कि 70 से ऊपर और अप साइड चल रहा है, और वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? What does short covering means? Open interest is going down and price is going up. So price फिर भी अप जा रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम होना चालू हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग. प्राइस अभी भी अप जा रहा है क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है. तो आप भले ही ब्रेक लगा दो, गाड़ी एक मोमेंटम में, तो फिर भी इट विल गोना स्किड थ्रू थोड़ा देरी. सो प्राइस इज स्टिल स्किडिंग आउट, बट द मोमेंटम और द आरपीएम इज गेटिंग हैम्पर्ड. यस यस, बिकॉज वैसे भी एक कहावत है मार्केट में, कुछ कहावतें बहुत अच्छी है मार्केट में कि जो क्या बोलते हैं, एमेचर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट. तो जो सुबह का आधी घंटा होता है वहाँ पे एमेचर्स मतलब वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो स्टार्टर वाले रहते हैं, एंड प्रोफेशनल्स दे आर मोर एक्टिव इन द लास्ट हाफ एन आवर. एक और बहुत अच्छी कहावत है, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट, इट्स यूजुअली ऑन द वॉल स्ट्रीट. हम एनालिस्ट कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हम इसे बोलते हैं दैट इफ़ आई टेल यू आई हैव टू किल यू. तो अगर मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी किसी को बतानी है, कोई फ्रेंड पूछ लेता है, दैट्स अ यो वर्ड वी से. सॉरी, हाँ, यूरोप से यूजुअली 1:30-2 बजे अलाइनमेंट हो जाता है, बट वी डोंट इम्पैक्ट मच अभी यूरोपियन मार्केट से. सी FIs इज कंटिन्यूसली ऑन द सेलिंग स्प्री, तो उनको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता. वी आर एब्सोल्युटली लिक्विडिटी ड्रिवन. आई विल नॉट जस्टिफाई व्हाट द FIs आर डूइंग. आई थिंक दे आर डूइंग अ स्मार्ट मूव. इंडिया इज ओवर एक्सपेंसिव, आई टोटली अग्री. कुछ स्टॉक्स 70-80 के PE पर है, और यू नो हार्ड टू डाइजेस्ट. ये काफ़ी PSUs जो कि 5-6 PE पे नहीं कोई देखता था, आज जो 70-80 के PE कमांड कर रहे हैं. सो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर मी एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, बट दैट इज व्हाट मार्केट इज. बट FIs को कंपल्शन नहीं है कि वो इंडिया में ही रुके. दे हैव द ग्लोबल एक्सेस. ब्राज़ील में उनको आज भी सिंगल PE पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, इंडेक्स मिल रहा है. वियतनाम मार्केट, दे हैव सो मेनी इमर्जिंग मार्केट्स which is better corporate governance or same as us, but still available at single PE. So that's why they are pulling their money out. Yeah. Coming. Why is the market rising? Because we are buying. We are buying. We are buying. You know, almost 20,000, 21,000 crore of SIP inflows are coming into the market. Out of that, I'll say 50% is going into debt, maybe. Still 1.5 billion rupees is straight away coming through the mutual fund route. PMS, obviously Ashish bhai ne apna PMS चालू किया hardly 3 years back. Now it's there on couple of thousand crores AUM. Gurmeet started some year back. He started almost close to $500 million or plus, nearby $1 billion he's managing. So आप सोचो इतना पैसा आ रहा है. So it's a demand and supply. They may be, but they don't have an option ना. वो तो धंधा नहीं बंद कर सकते ना, आने दो. नहीं, ये मेरे चार्ट के हिसाब से नहीं है. चार्ट में मेरे FIs का कोई संबंध नहीं है.
I am not a best judge to say that. No, most likely they may be, but I am nowhere to comment it on that. Because I am a trader, I really don't care for what it will be 10 years down the line or 5 years down the line. Who? See, I agree, CA में भी बहुत सारे जन फेल होते हैं, तो मैं इसका मतलब ये नहीं था कि मैं CA नहीं करूँ. CA का पासिंग परसेंटेज इज लेस देन 7%. यहाँ तो फिर भी 5%. आई वेंट फॉर जॉब इंटरव्यू, 700 जन थे एम्प्लॉय JP Morgan के इंटरव्यू में, 6 जन सेलेक्ट हुए, 1% से कम था. तो यहाँ तो फिर भी 5% का एक्सचेंज ने बोल दिया है, तो ऑड्स आर इन माई फेवर. एंड थर्ड जनरेशन हूँ मार्केट में, तो थोड़ा सा और फेवर में था. एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन टू विद अ प्रॉप डेस्क. सो यू नो आई सॉ पीपल मेकिंग मनी. सो फॉर मी, yes, traders are losing money, traders lose money, but that's an opportunity for me. Absolutely. No, see, it's okay. FIs don't have a compulsion to buy in Indian market. They have a option. आपके पास अगर ऑप्शन होता मेरे को सुनने को और अक्षय कुमार को सुनने को, तो आप ऑब्वियसली उधर चले जाते. बट आज आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो. सो आई कैन नॉट से यू आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन. Because they're getting somewhere better opportunity na than us. Sir, I'm really sorry because I have to cover this point. ठीक है, मेरे as a trader I really don't get concerned. मैं तो टिक बाय टिक डेटा देखता हूँ, तो मेरे लिए तो डे भी प्योर इंटरडे ट्रेडर हूँ. तो मेरे को तो 3:15 बजे पूरी पोजीशन क्लोज चाहिए, P&L सामने चाहिए और घर जाना है. Okay, so that is my mentality. And I usually tell, जब भी मैं CA इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम करने आता ना, I usually ask डिमांड कि मेरे को लास्ट सेशन दे दो, so that I can stay till the people are there. But today they have not heard me. In fact, कल मेरा लास्ट सेशन ही था, but because of the flight delay, they have to put it here. सर मैं मेरी मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, because so we okay. So we make anywhere between 36 to 48% CAGR. We are consistently making that much amount. Yeah. One question of this chart only. When you said that there is a short covering happening, simultaneously there is a short build-up also. That is why the share has fallen down. Short build-up has happened after that. First short covering happened. Then यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे this is the zone where the short build-up started happening. This was the zone. But इस जोन में शॉर्ट कवरिंग वॉज हैपनिंग. ये जो एरिया यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ. बट अगर आपको यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट से स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही है, तो एटलीस्ट आप आधा प्रॉफिट तो बुक कर लोगे, आधा आप ट्रेल करोगे. एब्सोल्युटली करना चाहिए, तो करना ही चाहिए. जब शॉर्ट कवरिंग हो गई तो आपके रडार में आ जाना चाहिए कि अब मेरे को इसमें शॉर्ट बिल्टअप दिखा और मैं एंटर करूंगा. कौन सा वॉल्यूम बार? ऑब्वियसली इट सिग्निफाइज अ लॉट कि कितना वॉल्यूम हो रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम बहुत लो था. अगर आप वैसे देखोगे तो वॉल्यूम बहुत लो वॉल्यूम पे प्राइस अप हो रहा था. हाँ, तो बहुत लो वॉल्यूम पे प्राइस अप जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रहा है. देन वी चेक डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑल्सो कि डिलीवरी वॉल्यूम कितने हैं एवरेज में के हिसाब से. So again, you can see there were a lot of short covering happening. Stock edge, money control, सब पे अवेलेबल है. एंड ऑफ द डे देखना है ना आपको, तो डिलीवरी वॉल्यूम तो इस पे आई चार्ट पे भी अवेलेबल है, सारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है. ओके, पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर शॉर्ट बिल्टअप हुआ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजी हियर. एब्सोल्युटली देयर कैन बी. आई मीन, तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है. हमको तो ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला था, एंड आई वॉज वेटिंग कि शॉर्ट बिल्टअप होगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि द फर्स्ट क्राइटेरिया मेट, स्मार्ट मनी एग्जिटेड, उसके बाद स्मार्ट मनी एंड केम एंड स्टार्टेड शॉर्टिंग. सो इट इज़ अ क्लियर थिंग फॉर मी. ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन आई विल गो शॉर्ट इन दैट. अगर लॉन्ग बिल्टअप हो गया तो 200 स्टॉक है, एक नहीं मिला तो दूसरा है.
F&O में 200 स्टॉक्स है, तो एक में नई अपॉर्चुनिटी मिली तो दूसरे में तो मिल ही रही है. With a pinch of salt, but stick to 150 stocks. जो F&O के टॉप 150 है उसमें, जैसे डेल्टा कॉर्प था या नवीन फ्लोरो था, है अभी, या जो नॉन ट्रेडेड 40-50 नीचे वाले स्टॉक्स है, जैसे अभी आप देखोगे इंडिया सीमेंट है, कंटिन्यूसली बैन में चल रहा है, हिंद कॉपर जैसा स्टॉक कंटिन्यूसली बैन में चल रहा है, तो वहाँ पे इतना वर्क नहीं करेगा. स्टॉक्स विच कंटिन्यूसली गोज इन बैन, सो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर दैट. इट डजंट वर्क इन दो स्टॉक्स. मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. यूज ऑफ आर्टिफिशियल, सर हम बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हमको ट्राई करते हुए. वी हैव नॉट एबल टू क्रैक इट, जब बट आई से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. उसके लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. ओके, हाउ मच ड्राइवरलेस कार इज सक्सेसफुल येट? Not much. Okay. Can you think a driverless car in India running and winning the, comes first? Like आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना है तो सबसे पहले वो पहुँचे. Very difficult. दिल्ली के रोड पे तो चला ही नहीं सकेगा. ठीक है. But can you take a class 10th fail guy, give him the best car with the lot of sensors, power brake, automatic, and can he compete and win? Much easier. Okay, so अच्छा system with a good human and a machine combination is far more easier than a pure autonomous system. See, trading and from a data scientist point of view, trading or driverless car is same. You're dealing with a lot of unknown variables. आगे मोड़ पे क्या होगा you don't know. From the data scientist point of view, you don't know. It's all unknown variables. कि left, right, center कहीं से भी इंडिया में लोग आ सकते हैं. Okay. तो सेम आपका मार्केट अप डाउन नीचे कहीं भी जा सकता है साइडवेज. सो इट इज फार इजियर टू मेक अ मैन एंड अ मशीन कॉम्बिनेशन रादर देन अ प्योर मशीन कॉम्बिनेशन. सो दिस इज द सेम, दैट वाज द जोन जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ. उसके बाद द लॉन्ग बिल्टअप स्टार्टेड. सो यहाँ देखो आप, यहाँ पे if I can just show you the dates, this is 8th August. Okay, 25 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट पूरे यहाँ से आप 6-7 इसके बाद से देखोगे. सो इट वाज जुलाई का डेटा है. 18th जुलाई से लेकर यहाँ पे बीच में कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग हो रही थी. 8th अगस्त के बाद से, दिस वाज 8th अगस्त, 9th अगस्त से लेकर ऑलमोस्ट 27 अगस्त तक इसमें शॉर्ट बिल्टअप रहा. शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप. ओके, मतलब क्या हुआ? पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद शॉर्ट बिल्टअप हुआ. ओके, बट शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? चार्ट के अपर एंड पे. ओके, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई वो इंपॉर्टेंट है. हम जनरली शॉर्ट कवरिंग सोचते तो कहाँ सोचते? चार्ट के लोअर एंड पे. ये चार्ट है, ये जोन है, तो हम जनरली सोचेंगे शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ हो रही है, यहाँ पर. बट अगर आपको शॉर्ट कवरिंग यहाँ मिल रही है तो इट्स अ रेड फ्लैग. सो अगर आपको पूरा क्रक्स इस 45 1 आवर के प्रेजेंटेशन का है कि आपको शॉर्ट कवरिंग मे हैपन हियर, एंड इफ दिस हैपन्स हियर, इट्स अ रेड फ्लैग और इट्स अ फर्स्ट साइन, फर्स्ट वार्निंग साइन बोलते ना. शॉर्ट किया हुआ है किस लेवल पे? जब आपको चार्ट पे नीचे की तरफ लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखे एक, ठीक है. अगेन आई हैव अ होल प्रेजेंटेशन ऑन दिस. आई एम नॉट ब्लफिंग कि मेरे को वापस WIRC बुलाए, NIRC सॉरी. प्रेजेंटेशन पहले से तैयार है, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को शायद. सर आप वो लेते हो ना फीडबैक? कहाँ पे? नहीं लेते? ओके, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है? नहीं तो मैं बोल देता आप लोगों की वहाँ पे लिख दीजिएगा. ओके, कमिंग बैक, जोक्स अपार्ट. सो आई हैव अ होल प्रेजेंटेशन
See, these presentations I do for my own team. Okay. Okay, that was just for the context. RSI was just for the context to make you understand. So I usually call it through the zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Anyone who's following me on Twitter, Telegram, they know I'm a blind follower of zones or in the Bollinger Band ke do us pe. Okay, so this whole methodology where, oh sorry, I was not yeah. So there's a whole presentation ready on exit methodology, just exit. Okay, but that is for some other day. Thank you, sir. That's okay. So coming back, हमारा शॉर्ट है तो उसको एग्जिट करना है, एंड दैट टाइम द स्टॉक शुड कम इनटू योर रडार कि इसमें शॉर्ट्स बंद हो रहे हैं. अब इसमें आपको वेट करना है कि फर्स्ट टिक मिल जाए या फर्स्ट आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, देन यू हैव टू एंटर. एग्जैक्टली, बाइंग के लिए अच्छा मौका आने वाला, तो ये आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक बन जाना चाहिए. सो आपके अगर शॉर्ट्स है तो उसमें आपको बेस्ट टाइम है शॉर्ट्स में पैसा बुक करने के लिए. ये दोनों सिनेरियोज में हो सकता है. क्या 70 के ऊपर भी हो सकता है और 30 के नीचे भी हो सकता है. 70 के ऊपर हुआ तो इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल देंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, मतलब लॉन्ग्स निकल रहे. बट लॉन्ग्स निकल रहे तो वो इम्पैक्ट कर रहे प्राइस में. लॉन्ग्स निकल रहे तो वो बेच रहे तो उनके निकलने से प्राइस भी नीचे जा रहा है. बट अगर ये 30 के नीचे हो रहा है मतलब वो विदाउट इम्पैक्टिंग द प्राइस निकल रहे. यूजुअली आप डे पे देखो ये चार्ट्स, डे पे आप ये चार्ट और एनालाइज करो. क्या क्योंकि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज 3 मिनट बाद देती है, बाकी सारा डेटा एक्सचेंज इमीडिएटली. अगर आप मैं HFT लाइन में काम करता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, सो वहाँ में टिक बाय टिक मतलब हर टिक पे डेटा मिलता है. हर माइक्रो सेकेंड में वी गेट अ डेटा पॉइंट, डेटा पैकेट्स फ्रॉम द एक्सचेंज. But even for us, even on the HFT platform, the open interest data is published by exchange only by after 3 minutes. Okay, तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी वेंडर यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो 4 मिनट तक डिले हो जाता है. 3 मिनट वो उसके सर्वर पे जाएगा, वहाँ से आपके इस पे आएगा, इंटरनेट की लेटेंसी रहेगी, तो 4 मिनट का आप मोटा मोटी लैग समझ के चलो. सो 4 मिनट इज़ अ वेरी बिग विंडो, स्पेसिफिकली दोज हु आर ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस. इंडेक्स ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हमने देखा अभी अप्रैल में विद इन 3 सेकेंड्स निफ्टी ड्रॉप्ड हाउ मच, ऑलमोस्ट 1%. आपका $3 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी का इंडेक्स है, सबसे बड़ा इंडेक्स, दैट ड्रॉप्ड 3 सेकेंड के अंदर 1% पे. ओके, सो उससे आप ये समझ सकते हो कि 4 मिनट इज लाइक ऑलमोस्ट एक मिलेनियल. HFT वालों के लिए तो एक मिलेनियम जितना बड़ा हो जाता 4 मिनट. एल्गोरिथम से हाँ. यस, सो कमिंग बैक, चोला फाइनेंस. ओके, चोला फाइनेंस, एज यू कैन सी हियर द प्राइस स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉप्ड, बट समवेयर अराउंड हियर, ओके, जब वो इस जोन में था तभी अगर आप देखोगे, so the short covering started happening. Okay, this is from the iChart. iChart करके एक सॉफ्टवेयर है, उससे आई एम नोवेयर अफिलिएटेड टू iChart. आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन बोनस, कुकर, फ्रिजर, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है. okay, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, इट विल गिव यू द सेम डेटा. okay, there are several softwares, iChart है, Obstra है, MyFNO है, and these softwares are very I'll say reasonably charged. If you are talking about trading and future, आपका 1% move is usually typical. Any future contract is 7 to 8 lakhs का notional value. तो अगर उसमें 1% का भी मूव आता है तो आपका M2M 7-8 हज़ार से हिलता है. क्या एक लॉट पे
and these softwares comes for hardly 500, 700,000 rupees per month. So if you'll see from the analysis point of view, they are charging peanuts. Okay. ये तो iCharts के है. iChart is a good software. Opstra is a good software. ओके इसमें से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं टीवी शेयर करता हूँ, तो मैं सबके बारे में अच्छा ही बोलूँगा, बट दे आर रियली गुड. उसके बाद ऑब्स्ट्रा, iCharts, क्वांट्सएप और कौन से है, MyFNO, ये चार काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है. बेसिक्स में अगर आपको सस्ते रेंज में चाहिए, इफ़ यू आर अ प्रो ट्रेडर, इफ़ यू आर अ गुड इफ यू आर लाइक सीरियस ट्रेडर, then I think something like Falcon or Spider is fabulous. But they are a little expensive. They come 70,000-80,000 rupees per year basis. But still worth it. Still 6-7 हज़ार रुपया महीने का ले रहे, बहुत सस्ता है. स्पाइडर फाल्कन में बहुत सारा डेटा सेट है. ठीक है. अगेन एक दिन आप उनका सेशन करवा लो, मैं वहाँ इनकी मार्केटिंग नहीं करूँगा, बट एक सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे हम एक क्वेरी रन करते हैं फाल्कन में, स्पाइडर में, तो आई यूज स्पाइडर कि भाई मेरे को 50 लाख से वैल्यू के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं F&O में, 50 लाख एंड अबव, एंड जो सामने से खरीद रहा है, सी दैट 2 वे यू कैन बाय. आप बिड लगाकर खरीद सकते हो, आप आस्क सेलर से ले सकते हो. तो जो भी सेलर से ले रहा है टिक बढ़ाकर, आई नीड दैट डेटा 50 लाख एंड अबव वाले. सो ब्लॉक जहाँ भी हो रहा है छोटा, मतलब तो दैट गिव्स मी कि हाउ अग्रेसिव द बायर इज, कि वो बिड लगा के नहीं ले रहा है, वो सामने से खरीद रहा है, उठा रहा है. 50 लाख से ऊपर का, 1 करोड़ से ऊपर का वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो वो आप डाल सकते हो. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस के तो बहुत सारे आप कर सकते हो. कहाँ कॉल अनराइटिंग, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ PCR चेंज हो रहा है, किस स्ट्राइक में कहाँ मूव हो रहा है. तो स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इट्स वेरी यूजफुल. ओके, कमिंग बैक, शॉर्ट कवरिंग. Okay, I'll show you some recent examples also. ये थोड़ा सा पुराना है, but Deepak Nitrite. Okay, exactly price moved from here, and sorry, this was the zone. I'll just highlight it also. This was the zone. Okay, I'll be sharing these PPTs so you can just check with the dates also. यहाँ पे शायद उतने dates इसमें नहीं दिखेंगे visible आपको. Okay. ये एग्जिट, ये फॉल आने से पहले, ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग वाज हैपनिंग इन द स्टॉक. बिफोर दिस बिग फॉल केम, द शॉर्ट कवरिंग स्टार्टेड हैपनिंग. ठीक है. शॉर्ट कवरिंग कहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर, मतलब आई कॉल दिस जोन 1, और जब टिपिकली RSI जो है 70 से ऊपर है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, कोई भी स्टॉक है आपके पास जो कि 70 से ऊपर और अप साइड चल रहा है, और वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट डज शॉर्ट कवरिंग मींस? ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन एंड प्राइस इज गोइंग अप. सो प्राइस फिर भी अप जा रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम होना चालू हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग. प्राइस अभी भी अप जा रहा है, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है. तो आप भले ही ब्रेक लगा दो, गाड़ी एक मोमेंटम में, तो फिर भी इट विल गोना स्किड थ्रू थोड़ा देरी. सो प्राइस इज स्टिल स्किडिंग आउट, बट द मोमेंटम और द RPM इज गेटिंग हैम्पर्ड. यस यस, बिकॉज वैसे भी एक कहावत है मार्केट में, कुछ कहावतें बहुत अच्छी है मार्केट में कि जो क्या बोलते हैं, एमेचर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट. तो जो सुबह का आधी घंटा होता है वहाँ पे एमेचर्स, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो स्टार्टर वाले रहते हैं, एंड प्रोफेशनल्स दे आर मोर एक्टिव इन द लास्ट हाफ एन आवर. एक और बहुत अच्छी कहावत है, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट, इट्स यूजुअली ऑन द वॉल स्ट्रीट. हम एनालिस्ट कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हम इसे बोलते हैं दैट इफ़ आई टेल यू आई हैव टू किल यू. तो अगर मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी किसी को बतानी है, कोई फ्रेंड पूछ लेता है, दैट्स अ वर्ड वी से. सॉरी,
हाँ, यूरोप से यूजुअली 1:30-2 बजे अलाइनमेंट हो जाता है, बट वी डोंट इम्पैक्ट मच अभी यूरोपियन मार्केट से. सी FIs इज कंटिन्यूसली ऑन द सेलिंग स्प्री, तो हमको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता. वी आर एब्सोल्युटली लिक्विडिटी ड्रिवन. आई विल नॉट जस्टिफाई व्हाट द FIs आर डूइंग. आई थिंक दे आर डूइंग अ स्मार्ट मूव. इंडिया इज ओवर एक्सपेंसिव, आई टोटली अग्री. कुछ स्टॉक्स 70-80 के PE पर है और हार्ड टू डाइजेस्ट. ये काफ़ी PSUs जो कि 5-6 PE पे नहीं कोई देखता था, आज जो 70-80 के PE कमांड कर रहे हैं. So it's hard to digest for me as a fundamental analyst, but that is what market is. But FIs को compulsion नहीं है कि वो इंडिया में रुके. They have the global access. ब्राज़ील में उनको आज भी सिंगल PE पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, इंडेक्स मिल रहा है. वियतनाम मार्केट, they have so many emerging markets, which is better corporate governance or same as us, but still available at single PE. So that's why they are pulling their money out. Coming, because we are buying. We are buying. You almost 20,000, 21,000 crore of SIP inflows are coming into the market. Out of that, I'll say 50% is going into debt, maybe. Still 1.5 billion rupees is straight away coming through the mutual fund route. PMS, obviously Ashish bhai ne apna PMS चालू किया hardly 3 years back. Now it's there on couple of thousand crores AUM. Gurmeet started some year back. He started almost close to $500 million or plus, nearby $1 billion he's managing. So आप सोचो इतना पैसा आ रहा है. So it's a demand and supply. They may be, but they don't have an option ना. वो तो धंधा नहीं बंद कर सकते ना, आने दो. नहीं, ये मेरे चार्ट के हिसाब से नहीं है. चार्ट में मेरे FIs का कोई संबंध नहीं है. I am not a best judge to say that. No, most likely they may be, but I am nowhere to comment it on that. Because I am a trader, I really don't care for what it will be 10 years down the line or 5 years down the line. Who? See, I agree, CA में भी बहुत सारे जन फेल होते हैं, तो मैं इसका मतलब ये नहीं था कि मैं CA नहीं करूँ. CA का पासिंग परसेंटेज फिर भी 5%. आई वेंट फॉर जॉब इंटरव्यू, 700 जन थे एम्प्लॉय JP Morgan के इंटरव्यू में, 6 जन सेलेक्ट हुए, 1% से कम था. तो यहाँ तो फिर भी 5% का एक्सचेंज ने बोल दिया है. तो ऑड्स आर इन माई फेवर. एंड थर्ड जनरेशन हूँ मार्केट में, तो थोड़ा सा और फेवर में था. एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन टू विद अ प्रॉप डेस्क. सो आई सॉ पीपल मेकिंग मनी. सो फॉर मी, yes, traders are losing money, traders lose money, but that's an opportunity for me. Absolutely. No, see, it's okay. FIs don't have a compulsion to buy in Indian market. They have an option. आपके पास अगर ऑप्शन होता मेरे को सुनने को और अक्षय कुमार को सुनने को, तो आप ऑब्वियसली उधर चले जाते. बट आज आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो. सो आई कैन नॉट से यू आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन. Because they're getting somewhere better opportunity na, than us. Sir, I'm really sorry because I have to cover this point. ठीक है, as a trader, I really don't get concerned. मैं तो टिक बाय टिक डेटा देखता हूँ, तो मेरे लिए तो डे भी प्योर इंटरडे ट्रेडर हूँ. तो मेरे को तो 3:15 बजे पूरी पोजीशन क्लोज चाहिए, P&L सामने चाहिए और घर जाना है. Okay, so that is my mentality. And I usually tell, जब भी मैं CA इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम करने आता ना, I usually ask डिमांड कि मेरे को लास्ट सेशन दे दो, so that I can stay till the people are there. But today they have not heard me. In fact, कल मेरा लास्ट सेशन ही था, but because of the flight delay, they have to put it here. सर मैं मेरी मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, because so we okay. So we make anywhere between 36 to 48% CAGR
We are consistently making that much amount. Yeah. One question of this chart only. When you said that there is a short covering happening, simultaneously there is a short build-up also. That is why the share has fallen down. Short build-up has happened after that. First short covering happened. Then यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे this is the zone where the short build-up started happening. This was the zone. बट इस जोन में शॉर्ट कवरिंग वॉज हैपनिंग. ये जो एरिया यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ. बट अगर आपको यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट से स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही है, तो एटलीस्ट आप आधा प्रॉफिट तो बुक कर लोगे, आधा आप ट्रेल करोगे. एब्सोल्युटली करना चाहिए, तो करना ही चाहिए. जब शॉर्ट कवरिंग हो गई तो आपके रडार में आ जाना चाहिए कि अब मेरे को इसमें शॉर्ट बिल्टअप दिखा और मैं एंटर करूंगा. कौन सा वॉल्यूम बार? ऑब्वियसली इट सिग्निफाइज अ लॉट कि कितना वॉल्यूम हो रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम बहुत लो था. अगर आप वैसे देखोगे तो वॉल्यूम बहुत लो वॉल्यूम पे प्राइस अप हो रहा था. हाँ, तो बहुत लो वॉल्यूम पे प्राइस अप जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रहा है. देन वी चेक डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑल्सो कि डिलीवरी वॉल्यूम कितने हैं एवरेज में के हिसाब से. सो अगेन यू कैन सी देयर वर लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग. स्टॉकेज, मनी कंट्रोल सब पे अवेलेबल है. एंड ऑफ द डे देखना है ना आपको तो डिलीवरी वॉल्यूम, तो इस पे आई चार्ट पे भी अवेलेबल है, सारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है. ओके, पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर शॉर्ट बिल्टअप हुआ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजी हियर. एब्सोल्युटली देयर कैन बी. आई मीन, तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है. हमको तो ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला था, एंड आई वॉज वेटिंग कि शॉर्ट बिल्टअप होगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि द फर्स्ट क्राइटेरिया मेट, स्मार्ट मनी एग्जिटेड, उसके बाद स्मार्ट मनी एंड केम एंड स्टार्टेड शॉर्टिंग. सो इट इज अ क्लियर थिंग फॉर मी. ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन आई विल गो शॉर्ट इन दैट. अगर लॉन्ग बिल्टअप हो गया तो 200 स्टॉक है, एक नहीं मिला तो दूसरा है. F&O में 200 स्टॉक्स है, तो एक में नई अपॉर्चुनिटी मिली तो दूसरे में तो मिल ही रही है. विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट स्टिक टू 150 स्टॉक्स. जो F&O के टॉप 150 है उसमें, जैसे डेल्टा कॉर्प था या नवीन फ्लोरो था, है अभी, या जो नॉन ट्रेडेड 40-50 नीचे वाले स्टॉक्स है, जैसे अभी आप देखोगे इंडिया सीमेंट है, कंटिन्यूसली बैन में चल रहा है. हिंद कॉपर जैसा स्टॉक कंटिन्यूसली बैन में चल रहा है, तो वहाँ पे इतना वर्क नहीं करेगा. स्टॉक्स विच कंटिन्यूसली गोज इन बैन, सो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर दैट. इट डजंट वर्क इन दो स्टॉक्स. मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर हम बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हमको ट्राई करते हुए. वी हैव नॉट एबल टू क्रैक इट. जब बट आई से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. उसके लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. ओके, हाउ मच ड्राइवरलेस कार इज सक्सेसफुल येट? Not much. Okay. Can you think a driverless car in India running and winning the, comes first? Like आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना है तो सबसे पहले वो पहुँचे. Very difficult. दिल्ली के रोड पे तो चला ही नहीं सकेगा. ठीक है. But can you take a class 10th fail guy, give him the best car with a lot of sensors, power brake, automatic, and can he compete and win? Much easier. Okay, so अच्छा system with a good human and a machine combination is far more easier than a pure autonomous system. See, trading and from a data scientist point of view, trading or driverless car is same. You're dealing with a lot of unknown variables. आगे मोड़ पे क्या होगा you don't know. From the data scientist point of view, you don't know. It's all unknown variables. कि left, right, center कहीं से भी इंडिया में लोग आ सकते हैं. Okay. तो सेम आपका मार्केट अप डाउन नीचे कहीं भी जा सकता है साइडवेज. सो इट इज फार इजियर टू मेक अ मैन एंड अ मशीन कॉम्बिनेशन रादर देन अ प्योर मशीन कॉम्बिनेशन. सो दिस इज द सेम
दैट वाज द जोन जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, उसके बाद द लॉन्ग बिल्टअप स्टार्टेड. सो यहाँ देखो आप, यहाँ पे इफ आई कैन जस्ट शो यू द डेट्स, दिस इज 8 अगस्त. ठीक है, 25 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट पूरे यहाँ से आप 6-7 इसके बाद से देखोगे. सो इट वाज जुलाई का डेटा है, 18 जुलाई से लेकर यहाँ पे बीच में कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग हो रही थी. 8 अगस्त के बाद से, दिस वाज 8 अगस्त, 9 अगस्त से लेकर ऑलमोस्ट 27 अगस्त तक इसमें शॉर्ट बिल्टअप रहा. शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप. ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद शॉर्ट बिल्टअप हुआ. ठीक है, बट शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई, चार्ट के अपर एंड पे. ओके, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई वो इंपॉर्टेंट है. हम जनरली शॉर्ट कवरिंग सोचते तो कहाँ सोचते, चार्ट के लोअर एंड पे. ये चार्ट है, ये जोन है, तो हम जनरली सोचेंगे शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ हो रही है, यहाँ पर. बट अगर आपको शॉर्ट कवरिंग यहाँ मिल रही है तो इट्स अ रेड फ्लैग. सो अगर आपको पूरा क्रक्स इस 45 1 आवर के प्रेजेंटेशन का है कि आपको शॉर्ट कवरिंग may happen here, and if this happens here, it's a red flag or it's a first sign, first warning sign बोलते ना. शॉर्ट किया हुआ है किस लेवल पे, जब आपको चार्ट पे नीचे की तरफ लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखे एक. ठीक है, अगेन आई हैव अ होल प्रेजेंटेशन ऑन दिस. आई एम नॉट ब्लफिंग कि मेरे को वापस WIRC बुलाए, NIRC सॉरी. प्रेजेंटेशन पहले से तैयार है, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को शायद. सर आप वो लेते हो ना फीडबैक, कहाँ पे नहीं लेते? ओके, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है? नहीं तो मैं बोल देता आप लोगों को कि वहाँ पे लिख दीजिएगा. ओके, कमिंग बैक, जोक्स अपार्ट. सो आई हैव अ होल प्रेजेंटेशन. सी दीज प्रेजेंटेशंस आई डू फॉर माय ओन टीम. ओके, okay, that was just for the context. RSI was just for the context to make you understand. So I usually call it through the zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Anyone who's following me on Twitter, Telegram, they know I'm a blind follower of zones or in the Bollinger Band ke do uspe. Okay, so this whole methodology where oh sorry, I was not just yeah. So there's a whole presentation ready on exit methodology, just exit. Okay, but that is for some other day. Thank you, sir. That's okay. So coming back, SEBI rules, they cannot make a naked short. हेज के लिए थोड़ा बहुत फ्रैक्शन उनको अलाउ है, बट बाकी नहीं. F&O ट्रेडिंग अलाउ नहीं है उनको. एनालिस्ट के लिए हमारे लिए है ना रेस्ट्रिक्शन सेबी के, कि हम जो भी स्टॉक बता रहे टीवी पे उसको 5 दिन पहले और 30 दिन बाद तक ट्रेड नहीं कर सकते. या कमिंग बैक, उसमें भी डेली पता है क्या हो रहा है, एंड उसमें भी क्या है, सेक्टर पूरा एक साथ रोटेट मूव करता है. अभी आप देखोगे आईटी में, सब में आईटी में बाइंग आई है. बैंक नहीं चल रहे तो सब नहीं चल रहे. सो आप 2-4 बैंक देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर ICICI नहीं चला, एक्सिस नहीं चला, तो कोटक भी नहीं चलेगा. अगर इन्फी में, बिरला सॉफ्ट में, LTIM में बाइंग आ रही है तो TCS में भी सेम ही पैटर्न बन रहे होंगे. सॉरी, सर 3 तरीके के होते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई आस्क्ड यू 2 सेशंस में फुल अटेंशन. दिस इज द सेकंड स्लाइड. 2 स्लाइड्स में ओपन इंटरेस्ट 3 तरीके के होते हैं. फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, कॉल ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट. क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये दोनों ऑप्शंस के हैं, कॉल एंड पुट. ठीक है, और ये फ्यूचर का है. तो सबसे ज्यादा ओके, हाउ मेनी फॉर फ्यूचर? ओके, हाउ मेनी फॉर कॉल? हाउ मेनी फॉर पुट?
Okay, very few for put, very less for call, and very lot of for futures. I'll tell you, the chronology is exactly ulta. The most important is put option, and I explain also. जब आप फ्यूचर खरीद रहे हो, से आपने फ्यूचर बेचा और मैंने खरीदा, ठीक है, हाइपोथेटिकली से 100 का लॉट है, कोई भी 10 रुपये ऊपर गए वो स्टॉक, आपने बेचा, मैंने खरीदा है, आपको कितने का लॉस हुआ? 100 इंटू 10, 100 का लॉट है, 100 का लॉट है और 10 रुपये का लॉस हुआ। आप 10 रुपये आपके अगेंस्ट गया, तो आपको कितने का लॉस है? 1000 का। मेरे को कितना का प्रॉफिट है? सो कैन वी से वी हैव अ लीनियर पे ऑफ डायग्राम? जितना आपको लॉस है उतना ही मेरे को प्रॉफिट है। सेट्रस पेरेबस, कंसिडरिंग एवरीथिंग इक्वल, हम अज्यूम कर रहे हैं असम्पशन के लिए कि हमारे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रहा अभी, ठीक है। लैटिन फ्रेज है, हमने लॉ में पढ़ा था कि कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई और कॉस्ट नहीं है, तो आपको जितना लॉस है उतना ही मेरे को गेन है। आपने कितनी मार्जिन दी? हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपए मार्जिन लग रही है, तो आपकी मार्जिन कितनी लगी? 1 लाख। मेरे को कितनी मार्जिन देनी पड़ी? 1 लाख, ठीक है। सो वी बोथ हैव इक्वल पे ऑफ डायग्राम। सो द डायग्राम इज, जिसे हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर है, जितना आपको लॉस होगा उतना ही मेरे को बेनिफिट होगा। अब वही चीज ऑप्शन में आ जाते हैं हम, तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, ठीक है, दोनों में बायर को क्या करना है? बायर को मार्जिन कम देनी है, ठीक है। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायर? एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन बायर: लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड, एंड लो मार्जिन, एब्सोल्युटली लो मार्जिन। MARGIN, ठीक है। मैं सिर्फ इसमें से ये पॉइंट, ये लाइन डिलीट कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, ये वाली लाइन में डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन बायर के एडवांटेजेस, इजंट इट? है कि नहीं? ये डेल्टिन रॉयल का ऐड नहीं लग रहा? डेल्टिन कैसीनो का, गोवा वाले का, या वो रमी सर्कल या ड्रीम 11, उसका ऐड नहीं लग रहा? उसके ऐड में भी यही बोलते ना, का बहुत छोटा सा लॉस है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, 2 करोड़ का जैकपॉट, और पैसे मार्जिन लगने ही नहीं है। ऑप्शन बायर यूजुअली पैसे देखे जाता है मार्केट में, ठीक है। द स्टैट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट हिम। ऑप्शन सेलर इज लाइक अ कसिनो, एंड वी ऑल नो द हाउस ऑलवेज विंस। कसिनो को हाउस बोलते हैं, सो वी ऑल नो स्टैटिस्टिकली द हाउस ऑलवेज विंस, ठीक है। सम ऑफ यू से नहीं, मैं तो कमा कर आता हूं ऑप्शन में, ठीक है, आई रिप्लेस इट विद अ बेटर वर्ड, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और ऑप्शन तो सेम ही है। जनरली तो इंश्योरेंस कंपनी फायदे में रहती है ना। आप सीएस हो, आप तो ऑडिट करते हो कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी की। सो यू ऑल एग्री विथ मी? कमिंग बैक टू आवर सिनेरियो, कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, दीज आर फार इंपॉर्टेंट देन द फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट पे। कमिंग बैक, कॉल का ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शन बायर इज पेइंग लेस मनी, whereas option seller is paying more money, he's taking more risk, less return, so we have to give him the due respect, okay। तो ऑप्शन बायर जहां है वो एक ऑप्शन सेलर, ऑप्शन का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की तरह बहुत ज़्यादा काम करता है, जहां पे ऑप्शन की लाइन है। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वाइल, ठीक है। अब इन दोनों में भी पुट वाला जो है उसको आपको सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देना है। क्यों? क्योंकि इन माई 15 years 16 years ऑफ हिस्ट्री आई हैव हार्डली सीन मार्केट गोइंग अप, यू नो, ड्रास्टिकली अप, मतलब अपर सर्किट लगने के लिए बहुत कम, या तो किसी पार्टी को इलेक्शन जीतना पड़ता है, दैट टू वाज लाइक अ नॉन इवेंट, दिस नेवर अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, या एफएम को आकर टैक्स रेट कम करना पड़ता है, तब जाके मार्केट
यू नो इट गोज ऑफ टू 2 सिग्मा मूव. 2 सिग्मा मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मूव. वैसा मूव आने के लिए आपको ऐसा इवेंट लगेगा जहाँ पे एफएम को आके टैक्स कट करना पड़ा या कोई पार्टी को इलेक्शन एकदम ड्रास्टिकली जीतना पड़ा. बट मार्केट गिरने के लिए नथिंग, कहीं भी कुछ भी हो गया, गिर गया. सो पुट बायर इज द वन हु इज टेकिंग ह्यूज रिस्क. मार्केट मतलब 3% 4% इंडेक्स गिरते हुए तो हमने बहुत बार देखा है. निफ्टी को 600 पॉइंट गिरते हुए तो बहुत बार देखा है ना. 15 साल की हिस्ट्री में इनफैक्ट आई हैव दिस पुट सेलर. सॉरी yeah, thank you for correcting me. Put seller is the maximum amount of risk. So for me, he's the smartest guy in the room. So I always follow what the put seller is doing और the put का open interest कैसा change हो रहा है. Before taking any decision, अगर ये तीनों में से मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ध्यान देना है तो मैं सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ चेंज हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ. स्पेसिफिकली दोज हु आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी ऑप्शंस या निफ्टी ऑप्शन. मतलब वीकली एक्सपायरी आप कर रहे हो तो इस पर तो आप फोकस करो ही करो. पूरा फोकस आपको ये रहना चाहिए कि पुट वाला क्या कर रहा है, वो कब भाग रहा है मार्केट से. अगर वो भाग रहा है मतलब क्या हो गया, मार्केट गिरेगा. पुट सेलर अगर पोजीशन क्लोज कर रहा है मतलब ही इज इन पेन, मतलब मार्केट गिरेगा. और पुट सेलिंग बहुत दबाकर हो रही है मार्केट में तो इट इज अ गुड साइन, मार्केट अप जाएगा. बेसिक थंब रूल वर्क्स वंडरफुली. ठीक है. इनफैक्ट द होल अभी लास्ट वीक आई टोल्ड ऑन एयर स्टॉक ऑफ इंडिगो इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, 4500 का हाई मार रहा था. आई गिव इट ऑलमोस्ट 6% का टारगेट एंड आई सेड ऑन एयर कि दिस विल हिट, यू नो दिस विल हिट बिकॉज, एंड आई गिव द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. I have time now, 10 minutes. Yeah. So why that was happening? So you have to use, see, open interest on a standalone basis will not going to fetch you. So market is like a big jigsaw puzzle. आप जितने jigsaw puzzle के pieces add करते जाएंगे, the picture will be much more clear to you. Okay. तो option chain is the very key important piece of that jigsaw puzzle. Okay. Obviously, you have to use it along with price action, along with market sentiment, along with overall momentum of the market. वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा. But on a standalone basis पे open interest आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताएगा. Okay. Before PCR, very important, put call ratio जिसे हम बोलते हैं. Okay. It signifies a lot of things, how the put and call both are moving. So PCR is basically a put and call का ratio. Okay. एक जनरल सेइंग है, अगर PCR 1.3 के ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट इज ओवरबॉट. एंड दिस टाइम ओवरबॉट मीन्स ओवरबॉट. ओके. मतलब क्या हो गया, ओवर बॉट हो गया, मतलब मार्केट में ओवर बाइंग हो चुकी है. PCR अभी 1.1 के करीब चल रहा है निफ्टी का. ओके. बैंक निफ्टी का भी उधर ही है, तो न्यूट्रल साइड में है, तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. अगर PCR 0.6 के नीचे चला जाता है मार्केट इज ओवर सोल्ड. एनीवेयर बिटवीन 1 मतलब जितने पुट राइटिंग हुई है उतने कॉल राइटिंग हुई है, तो द रेशियो इज सेम. ठीक है. इसमें मतलब क्या हो गया, कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई. सो हियर देयर इज अ ह्यूज पुट राइटिंग, मतलब मार्केट में पुट राइटर्स ने बहुत ज़्यादा पोजीशन बना लिया. तो उसमें क्या होता है कि इतने पुट के पोजीशन बने हुए कि जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरा, पुट राइटर्स के पोजीशन क्लोज करने से ही द मोमेंटम और नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है. अभी मैंने पुट बेच रखी है और मैं पुट खरीदने आऊँगा तो मार्केट क्या होगा, और गिरेगा. क्या तो पुट राइटर्स के क्लोज करने से ही वो पोजीशन में मोमेंटम आ जाता है. सिमिलरली ओवरसोल्ड जोन ऑल्सो. सो कमिंग बैक, put call ratio is calculated by dividing the total trading volume of put option by the total trading volume of over the call option over a specific period. Yeah. What are the benefits of PCR?
इट्स अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर. कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर मतलब ये आपको उल्टी चीज़ें बताएगा. जब मार्केट अप है, जा रहा है, तभी ऑब्वियसली 1.3 के ऊपर जाएगा पीसीआर, तब वो आपको बता देगा कि मार्केट ओवर बॉट हो चुका है. तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आपको ये बता देगा मार्केट ओवर बॉट है. एंड जब गिरते हुए मार्केट में बता देगा कि ये ओवर सोल्ड है. इट टेल्स यू अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट. मतलब इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रीड एंड फियर. मार्केट में ग्रीड और फियर क्या चल रहा है, इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है. एंड इससे प्रिसाइज. क्यों? क्योंकि एक्चुअल पैसे लग रहे हैं. बाकी इंडिकेटर इज जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ द प्राइस एक्शन, बट दिस इज एक्चुअली जहां पे लोगों के पैसे लग रहे हैं. इट टेल्स यू द मार्केट टाइमिंग ऑल्सो. मार्केट टाइमिंग मतलब पीपल से डोंट टाइम द मार्केट, बट इफ यू आर यूजिंग दिस इंडिकेटर you can easily time the market. It tells you the sector analysis कि पूरे सेक्टर का मोमेंटम और सेक्टर का पीसीआर क्या चल रहा है. सो इट गिव्स यू दैट ऑल्सो. एंड इट इज अ वंडरफुल volatility indicator also. It tells you a lot about the volatility also. Okay, I was talking about Indigo. In fact, this was the time where this was the day where I said it was a buy, this candle, this big candle. Price action अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चौथा अटेम्प्ट था उस दिन उसका ऊपर जाने का. मतलब फोर्थ अटेम्प्ट somebody is taking. सीए में भी चौथा अटेम्प्ट में तो आदमी पास हो ही जाता है. जनरली इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई का गेम, जोक्स अपार्ट. सी फर्स्ट अटेम्प्ट देयर वाज अ सप्लाई केम, सेकेंड अटेम्प्ट सप्लाई केम. सो द ट्रेडर मेंटालिटी इज वेरी शॉर्ट साइटेड. उनको पता है कि 4500 पे बेचा था लास्ट टाइम, पैसे बने थे, इस बार भी बेचा. बट क्या हुआ, दिस टाइम बुल फोर्स वॉज मोर इन एक्शन. दे स्टार्टेड क्लोजिंग इन द प्राइस शूट अप. 4500 का इमीडिएटली इट वेंट टू 4000, ऑलमोस्ट 700 तक, 4800 आई थिंक. या okay, you'll see the PCR, how the PCR moved up. एग्जिट कब करना है, आपको ने लॉन्ग पोजीशन बना ली, अगर आपको ऊपर दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग होनी चालू हो गई, मतलब ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है एंड फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है. सो दैट इज योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू बुक सम प्रॉफिट्स. ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन भी. So to combine the two, then again, as I said, I have a whole exit पे एक पूरी रामायण, so that I'm very pleased to share it with you guys. Okay, obviously this was day before. The same day also, price moved up. Immediately the PCR shooted up. It was up. Okay, so put call ratio tells you even during the live market a lot of things. Okay. These are some of the places where you can connect with me. I'm usually, my DMs are always open. This is my office number. You can reach out to me. The full volatility indicator also. It tells you a lot about the volatility also. Okay. I was talking about Indigo. In fact, this was the time where, this was the day where I said it was a buy, this candle, this big candle. प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चौथा अटेम्प्ट था उस दिन उसका ऊपर जाने का. मतलब फोर्थ अटेम्प्ट somebody is taking. सीए में भी चौथा अटेम्प्ट में तो आदमी पास हो ही जाता है. जनरली इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई का गेम, जोक्स अपार्ट. सी फर्स्ट अटेम्प्ट देयर वाज अ सप्लाई केम, सेकेंड अटेम्प्ट सप्लाई केम. सो द ट्रेडर मेंटालिटी इज वेरी शॉर्ट साइटेड. उनको पता है कि 4500 पे बेचा था लास्ट टाइम, पैसे बने थे, इस बार भी बेचा. बट क्या हुआ, दिस टाइम बुल फोर्स वॉज मोर इन एक्शन. दे स्टार्टेड क्लोजिंग इन द प्राइस शूट अप. 4500 का इमीडिएटली इट वेंट टू 4000, ऑलमोस्ट 700 तक, 4800 आई थिंक. या okay, you'll see the PCR, how the PCR moved up. एग्जिट कब करना है, आपको ने लॉन्ग पोजीशन बना ली, अगर आपको ऊपर दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग होनी चालू हो गई, मतलब ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है एंड फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है. सो दैट इज योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू बुक सम प्रॉफिट्स. ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन भी. सो टू कंबाइन द टू, देन अगेन एज आई सेड, आई हैव अ होल एग्जिट पे एक पूरी रामायण, तो दैट आई एम वेरी प्लीज टू share it with you guys.
Okay. Obviously, this was day before. The same day also, price moved up. Immediately the PCR shooted up. It was up. Okay. So put call ratio tells you even during the live market a lot of things. Okay. These are some of the places where you can connect with me. I'm usually, my DMs are always open. This is my office number. You can reach out to me.